I can, Yes, ma'am. Yes. if I can ask while others are joining. Yesterday, you talked about sentiment analysis that can be done by ChatGPT. Yes, ma'am. If there is time, can you kindly give an example? How do we do that? मैम इसको लास्ट में कर दे लास्ट में आई हैव पॉइंटेड आउट है ना लास्ट में कर देते हैं ना इसको कि किस तरह से होता है Sure, sure, sure. Okay, good afternoon, everyone. Today we will discuss about exactly practical applications of the Chat GPT in generating the insight from the research data set. Okay, so today's this topic is very important. With these topics, we will also discuss about the interview and survey, how to analyze the interview data and the survey data. You know, actually, this is I think that this is a very simple practical applications of the Chat GPT. Now, without any delay, we will discuss it. You know. Okay. Okay, first of all, we will understand exactly what is the practical applications of the Chat GPT in generating the insight from the research data set. The practical applications of the Chat GPT in generating the insights from the research data set involve the utilization of the advancement natural language processing technique to analysis, interpret exact valuable information from the textual data success. The process facility to synthesize a complex research finding, identifications of the pattern, trend, and correlations, and add in the hypothesis generations and data driving decision making. ChatGPT serve as the powerful tool for the automating tasks such as the literature review, data synthesis, report generations, semantic research, and insights data visualization, thereby enhancing the efficiency, the accuracy, and accessibility of the research endeavor across the diverse discipline. That's mean whenever we are discussing about the practical applications of the Chat GPT, so there are the we have already discussed about these applications, है ना? तो वो applications क्या है? So this is the for example, the first application is the data summarizations. We will know about that the Chat GPT can do very well the data summarizations. जो data आपने दिया है, जो आपके पास table है, data can summarize by the Chat GPT. ठीक है ना? Another one, the text summarize analysis. The Chat GPT is capable to analyze the text also. Whenever you are using the text, for example, Sabina ma'am asked me, sir, tell me about the sentiment analysis. Whenever we have the text is here, we can analyze the sentiment analysis. And sentiment analysis mean there is a lot of the emotions is here. Whenever we are doing the data analysis, there will be the emotions in the data. We can do the sentiment analysis. This is the part of the text and data analysis. The other data exploration. When we are using the Chat GPT, we can do the very easily data explorations. Researcher can interact with the Chat GPT using the natural language queries, ठीक है ना, their data set. चैट जीपीटी रेस्पॉन्ड द क्वेश्चंस अबाउट द जो हम लोग डाटा है, जो हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, जो हम लोग उसमें डाटा डालेंगे, जो हम लोग चाहते हैं कि वी वांट टू नो अबाउट एग्जैक्टली द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, डाटा एक्सप्लोरेशंस. ठीक है. द हाइपोथेसिस जनरेशन,
The ChatGPT can also analyzes the research data set to identify the potential relationship of the correlations. Actually, hypothesis क्या बताता है? Hypothesis tell us what is the relationship between the relationship or the correlation between the variable. Based on the pattern the observed in the data, it can suggest the hypothesis for the further investigation. Researcher can use this hypothesis to starting point to design the experiment or conducting further analysis. Data cleaning and pre-processing का data cleaning, whenever we have the raw data, है ना, हमारे पास कोई ऐसा डाटा है बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, बहुत सारे एरर्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस डाटे को क्लीन कर सकते हैं, है ना. क्लीन क्या एंड प्रोसेसिंग, यानी जो डाटे को एनालिसिस करने से पहले हम उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना. और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, है ना, द ChatGPT provide the insight into the predictive modeling task by the considering with the future selections, model evaluations, and interpretation of the result. That means whenever we have the data or we want to देखे actually जो हमारा जो prediction से आगे इस modeling के लिए हमारा आगे क्या हो सकता है, ये जो जैसे कि for example we have discussed about the पॉपुलेशन डाटा के बारे में हमने डिस्कस किया और इसमें हम बताया कि हम लोग प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसी के बेस पर वी कैन प्रिडिक्ट के एक्चुअली आने वाले जैसे कि जो जितने भी सेंसस जो आगे आओगे 2041 तक के उसका प्रेडिक्शंस क्या होगा, कितनी जो नंबर्स ऑफ द पीपल जो बढ़ रहे हैं ना, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ 2041 तक या 2061 तक क्या होगा, है ना, कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा. तो वो क्या है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बताता है कि हमारा आने वाले वक्त में वी कैन डू क्या कर सकते हैं, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि आने वाले वक्त में हम इस डाटे से क्या का एनालिसिस कर सकते हैं. तो वो तो प्रेडिक्ट मॉडलिंग कहलाता है. लिटरेचर रिव्यू असिस्टेंस, लिटरेचर रिव्यू में असिस्ट करता है. जब हम कोई लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, टेक्स्ट को रिव्यू करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है ना. और क्या करता है, कोलैबोरेटिव एनालिसिस भी करता है. जब हम किसी के साथ मिलते हैं, ChatGPT फैसिलिटेट द कोलैबोरेशन अमंग द रिसर्चर्स बाय द सर्विंग एज अ विजुअल कोलैबोरेटर और असिस्टेंट, है ना. रिसर्चर कैन द इंटरेक्ट विद द ChatGPT टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, डिस्कस द फाइंडिंग, कोलैबोरेट ऑन द डाटा एनालिसिस टास्क. It provides the platform for the sharing insight, exchanging feedback, and refine the research hypothesis collaboratively. ठीक है. अब तो ये हमारा होगा, ये हमारी एप्लीकेशन है, कोलैबोरेटिव एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू असिस्टेंट, प्रेडिक्ट मॉडलिंग, डाटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, हाइपोथेसिस जनरेशन, डाटा एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट एनालिसिस एंड डाटा समराइजेशन. ठीक है. तो अब हम एक्चुअली ये हमने इसलिए थोड़ा सा इतना जल्दी इसलिए किया क्योंकि हम लोग बेसिकली इस जो एप्लीकेशंस के बारे में मोस्टली हम लोग जान चुके हैं पिछले क्लासेस में. लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो है कि हम लोग लेके आए हैं इंटरव्यू डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं, है ना. तो हम थोड़ा थ्योरेटिकल भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे. ठीक है. तो अब ये कहता है एकेडमिक इंटरव्यू डाटा एनालिसिस, कि एग्जैक्टली एकेडमिक इंटरव्यू डाटा एनालिसिस क्या है, हम इसको किस तरह से एनालिसिस किया करते हैं, और इसमें कौन कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, कौन सी मेथोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका पैटर्न क्या है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ना. एकेडमिक इंटरव्यू डेटा एनालिसिस, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं एकेडमिक इंटरव्यू फॉर रिसर्च है क्या चीज एक्चुअली, है ना. That during the academic research interview, we have the valuable chance to display our expertise, passions, understanding on your area of the study, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि जो academic interview for the research होता है, whenever you are doing the PhD और जो भी research आप कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है. तो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू जस्ट द क्वेश्चंस है ना, जो कुछ यू कैन क्रिएट द यू कैन जनरेट द क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक पे. फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द रिसर्च ऑन द पॉपुलेशंस, यू कैन क्रिएट द क्वेश्चंस ऑन द पॉपुलेशंस के बहुत सारे वेरियस
फैक्टर्स पे आपने एक क्वेश्चन आर्ट तैयार किया। क्वेश्चन मतलब एक आपने क्वेश्चन आर्ट तैयार किया, और क्वेश्चन आर्ट तैयार करने के हिसाब से आपने लोगों से जाके इंटरव्यू किया और पूछा कि एग्जैक्टली ये क्या, ये कोई एक पर्सनालिटी है, कोई एक राइटर है, कोई एक साइंटिस्ट है ना, कोई एक ऐसा बंदा है, एनी एक्सपर्ट हुई डीलिंग द दिस सब्जेक्ट, उससे जाके आपने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने के बाद बहुत सारी फाइंडिंग्स उसमें आई, और उस फाइंडिंग को आपको क्या करना है, उस फाइंडिंग को एनालिसिस करना है फॉर योर रिसर्च पर्पसेज। तो उस फाइंडिंग को एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक क्या है, उसके बारे में सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एकेडमिक इंटरव्यू फॉर द रिसर्चर होता ये है, ठीक है। और अनदर इंटरव्यू डेटा एनालिसिस। तो इंटरव्यू का डेटा एनालिसिस क्या होता है? द इंटरव्यू डेटा एनालिसिस इज द क्रूशियल टू इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो हमने बताया कि एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन को जब हम गैदरिंग करते हैं, है तो उसको उसको इंटरप्रेटिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। उसका पैटर्न्स क्या है, उसके अंदर इंसाइट्स क्या है ना। टेक्निक लाइक द थेमेटिकल एनालिसिस, कोडिंग आर द यूज ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये एक्चुअल थेमेटिक एनालिसिस भी है, और बहुत सारे एनालिसिस है जिसको हम करते हैं। तो ये क्या डेटा एनालिसिस, क्या इंटरव्यू डेटा एनालिसिस क्या है? वेरेवर वी आर एनालाइजिस द इंटरव्यू कि व्हाट इज द एग्जैक्टली इंटरव्यू, एंड you can get the pattern, insight, identify the responses and interpreting, है ना। वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, we can identify through the data analysis। कौन सा इंटरव्यू डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो टाइप ऑफ एकेडमिक इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है ना। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर मतलब ये है कि जो जो पहले से ऑलरेडी आपके पास सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यू कांट डू एनी चेंजेस व्हेनेवर यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस, है ना। स्ट्रक्चर इंटरव्यू इन्वॉल्व द आस्किंग द डिटरमाइंड क्वेश्चंस इन सिंथेटिक वे, है ना। तो ये पहले से आपके पास आपने एक फॉर्मेट तैयार किया, और उन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूई, ठीक है ना। तो वो चीज होती है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, वो कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, यू हैव द चॉइस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द इंटरव्यू, मतलब जो भी आपके पास लिखा है वो भी पूछ साइमल्टेनियसली, यानी स्पॉन्टेनियसली यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। किससे क्वेश्चन कर सकते हैं आप? इंटरव्यू से जो भी चाहे वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। वो क्या होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। Unstructured interview consists the spontaneous questions and encouraging open, authentic discussion, providing the deeper understanding of the candidate abilities despite their unpredictability. These interview promote the genuine dialogue, loading and more inform the hiring choices, ठीक है ना। तो अब होता है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। जो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू को होता है, एक्चुअली semi-structure interview is the combinations of the structure and unstructured interview. There is a lot of the flexibility, ठीक है, through the information collection in the depth explorations to the following questions. They gather the detailed data, promote the interactive conversations, and provide the qualitative perspective of the understanding and complex subject across the various domain, है ना। तो कितना स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा, तो तीन तरह के ये इंटरव्यू क्या होता है, ये इंटरव्यू होते हैं रिसर्च में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड फॉर द एकेडमिक रिसर्च इंटरव्यू, है ना। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड फॉर द एकेडमिक रिसर्च इंटरव्यू क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स को वी कैन यूज फॉर द एनालिसिस द इंटरव्यू, है ना। किस कौन कौन से जो मेथड्स है हम कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है, और इट इज डिपेंड योर क्या करते हैं योर रिसर्च कि आपको कौन सा
किस रिसर्च में कौन से मेथड्स को यूज करना, इट इज डिपेंड टू यू। तो इसलिए हम बहुत एक कॉमन सारे एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम स्पेशली जो आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट पे कौन सा आप यूज करेंगे, ये डिपेंड टू यू ऑफ यू, और यू कैन हेल्प एंड ChatGPT and Gemini AI, and there is a lot of the AI tools can help you which uh, method you can use for your data. ठीक है, तो नंबर वन इज वी विल डिस्कस अबाउट द थेमेटिक एनालिसिस। एग्जैक्टली थेमेटिक एनालिसिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू डाटा एनालिसिस। ठीक है, द थेमेटिक एनालिसिस इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, थीम को आइडेंटिफाई करता है, और कॉन्सेप्ट बताता है विच इज द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, कि उस ट्रांसक्रिप्ट इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या है। Researcher categorize the segment of text into the theme and sub-theme based on the recurring ideas, concept or topic. और purpose क्या है इसका। This method allow for the comprehensive explorations of the data, providing insight into the participant and perspective of the experience. ये क्या है, ये इसका purpose है। ठीक है, तो thematic हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के बारे में हमने कर दिया। द कंटेंट एनालिसिस सिस्टमेटिकली कोड्स एंड कैटेगराइज द कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट टू आइडेंटिफाई द प्रिवेलेंट थीम ऑफ द पैटर्न। Researcher develop a coding framework based on the predefined categories of the emergent theme and apply to its data. Enables research to quantify and analyze the frequency and distribution of the specified topic or concept within the interviews. ठीक है, कंटेंट एनालिसिस whenever you are जब आपने कोई इंटरव्यू किया है ना, जब आपके पास पूरा कंटेंट हो गया है, उस कंटेंट को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकल में बताएंगे कि हाउ कैन वी एनालाइज द इंटरव्यू, एग्जैक्टली व्हाट इज द इंटरव्यू, है ना, उसमें क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी थीम क्या है ना, वो सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस में। द अनदर वन इज द नैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, narrative analysis focus on the understanding how individual construct and convey their experience identities through the storytelling, है ना। नरेटिव वी नो अबाउट द नैरेटिव, है ना। तो ये क्या है, नैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम अपने इंटरव्यू को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। रिसर्चर एग्जामाइन द स्ट्रक्चर, कंटेंट, language of the interview, narrative to the uncover underlying meaning and theme. क्या पर्पस होता है इसका, पर्पस होता है emphasize the importance of the context and interpretations in understanding participants stories and live experience, है ना। जो किसी ने हमें अपने बारे में बताया, कुछ भी बताया इंटरव्यू में कि मैं ये सब था, मेरे ये था, मैं प्लेयर था, मैंने इतने गेम जीते, मैंने ये किया वो किया, तो यू कैन एनालाइसिस है ना, उसमें वो क्या कर देगा, आपको बता देगा, आपकी स्टोरी को बता देगा, आपके एक्सपीरियंस को बता देगा कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा था। द ग्राउंडेड थ्योरी, है ना। द ग्राउंडेड थ्योरी इज द इंडक्टिव अप्रोच टू qualitative analysis and aid the developing theories grounded in the data, है ना। तो अब इसका ग्राउंडेड थ्योरी का एनालिसिस का क्या 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 मकसद है, क्या प्रोसेस है, क्या पर्पस है तो क्या प्रोसेस क्या है। द रिसर्चर एनालाइज द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट iteratively, constantly comparing and refine the emerging concept of the categories. पर्पस क्या है इसका, build the theories closely aligned with the participants experience and perspective. बेसिकली थ्योरी का क्या है, हमें थ्योरी को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, ठीक है। The another is the discourse analysis. The discourse analysis examine the language, discourse and communications pattern with the interview transcript, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या है इसका, the researcher analyze linguistic feature,
rhetorical strategy and power of the dynamic to uncover the underlying ideologies and discursive practices, है ना, discursive ये कर सकता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको सोचने का तरीका क्या है, उनकी रेटोरिकल क्या है, लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या है, वो हम लोग लिंग्विस्टिक फीचर्स का एनालिसिस कर सकते हैं, रेटोरिकल स्ट्रेटेजी एंड पावर ऑफ द डायनेमिक टू द अनकवर अंडरलाइन द आइडियोलॉजी, ठीक है। द पर्पस provide the insight into the how the participant language shape their understanding of the topic under investigation, ठीक है ना। The conversational analysis, the conversation analysis क्या, conversation analysis क्या है, the conversation analysis focus on the structure and organize of the talk in the interview interactions. Conversation analysis focus on the structure and organization of the talk interview ना, क्या conversation हुआ है आप लोगों के बीच, है ना, between the interviewer and interviewer की conversation क्या है। तो researcher analyze sequential pattern turn the taking of the conversational strategy to understand how meaning is co-constructed. Purpose इसका क्या होता है, reveal the underlying rules and norms governing communication during the interview, ठीक है। ये इसका क्या होता है, इसका पर्पस होता है। Another one is the interactive or phenomenological analysis. IPA explore how individual make sense of their life experiences. इसका process क्या है, the researcher identify patterns of the meaning, interpretive frameworks and existential theme within the interview transcript. Purpose emphasizes understanding participant subjective perspectives and meaning they attribute of their experiences, है ना। तो interpretive and phenomenological analysis। अब क्या है, अब हमने ये समझ लिया कि एग्जैक्टली के जब हम लोग इंटरव्यू के डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या मेथड का यूज, इंटरप्रेटिव फिनोमेनल एनालिसिस का यूज हो सकता है, कन्वर्सेशन एनालिसिस यूज हो सकता है, डिस्कोर्स एनालिसिस यूज हो सकता है, ग्राउंडेड थ्योरी का एनालिसिस यूज हो सकता है, नरेटिव एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है, थेमेटिकल एनालिसिस है, ये सारे एनालिसिस हैं whenever we are doing the data analysis of interview, ठीक है, इंटरव्यू एनालिसिस। तो अब आता है कि अब हमने इंटरव्यू की बात कर ली है, हमारे पास आता है एकेडमिक सर्वे एनालिसिस। सर्वे क्या, व्हाट एंड द एकेडमिक सर्वे इन्वॉल्व्स, है ना। तो एकेडमिक सर्वे क्या है, an academic survey is the research method used for collecting data from the specific group of the individual to gather information inside a particular topic। यानी बेसिकली हम लोग तो जानते हैं सर्वे मतलब क्या है, सर्वे इज ए मेथड टू कलेक्ट द डेटा, है ना, कोई डेटे को कलेक्ट करने का एक मेथड है सर्वे करा। लेकिन जो सर्वे को हम जब सर्वे को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के लिए हमें उस सर्वे को किस तरह से एनालिसिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो थ्रू द चैट जीपीटी वी कैन बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से वी कैन डू द एनालाइज द सर्वे डेटा, ठीक है ना। Survey are commonly utilized in the academia to understand the trends, opinions, behaviors, and preferences with the various field of the study, है ना। तो हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, ट्रेंड्स के लिए, है ना, ओपिनियंस क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है और प्रेफरेंसेस क्या है। तो इसके लिए क्या होता है, एक सर्वे का यूज होता है और सर्वे में जो डेटा आता है उसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। Researcher designed the survey with the carefully crafted questions to elicit response and can be analyzed, the interpreted to draw the conclusion and make an informed decision, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लोगों से क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे, है ना। और उस पूछने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो रिजल्ट आएगा इट विल बी कंक्लूजन, ठीक है ना।
तो academic survey play the vital role in the advancing knowledge of the shaping the various discipline by the providing valuable data that can contribute to the existing body of the search. यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है किसी भी डेटा के लिए, है ना, सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एकेडमिक रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज का यूज करते हैं ना, सर्वे डाटा एनालिसिस। अब सर्वे डाटा एनालिसिस क्या, कैसे यूज होता है, क्या होता है, ठीक है ना। Survey data analysis involve the organizing, interpreting, and drawing the conclusion from the survey data using the statistical methods. Data cleaning is the essential to the identify and correct error to accurate finding before the exacting valuable insight. पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग इसको, और हम चैट जीपीटी की तरह किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना, और उसका इंटरप्रेट करने के बाद उसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत तरह की टेक्निक है ना। क्या, कौन सी टेक्निक है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग डेटा को, सर्वे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, और वी कैन एक्सप्लोरेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड टेस्ट हाइपोथेसिस के, और हम विजुअलाइजेशंस भी किसी भी सर्वे का कर सकते हैं, सच एज द चार्ट ऑफ द ग्राफ हैव द प्रेजेंट data killer. Survey data analyze the transform raw data into the actionable insight for the decision making and further search, enable the evidence based conclusion and recommendations. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सर्वे डाटा एनालिसिस हो गया। ठीक है ना। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज वेरी इजीली यू कैन यूज द गूगल फॉर्म फॉर द सर्वे, गूगल फॉर्म दे फॉर द सर्वे को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ खोल के, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द, मतलब क्वेश्चन आया, आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने फीडबैक द 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द कॉम्पिटेंट ऑफ द क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग पे हमने एक लोगों का फीडबैक लिया, है ना। फीडबैक मतलब जैसे हमने एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्या कर सकते हैं, आप एक सर्वे क्वेश्चन आंसर बनाइए, क्वेश्चन आर बनाइए, और उसको गूगल फॉर्म पर लाइए और उसको एनालिसिस कीजिए। तो देखिए इसमें कितनी आसानी से एनालिसिस। देखिए फॉर एग्जांपल, हमने इसमें क्या है, 24 रेस्पॉन्सेज हियर, तो उन्होंने ये बता दिया कि इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो 1111111 सबने 1 बार ईमेल आईडी इन्होंने एक बार दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा ऐसे, यानी कि ये एक संध्या और एक सुपरनाग, 2 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस डेटा सेट में अपनी 2 बार एंट्री की। तो देयर विल बी द ग्राफ इज आल्सो हियर, है ना। ग्राफ यहाँ पर पूरा ये आ गया है कि ग्राफ आ गया है, और यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, है ना। ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हो। ग्राफ के अलावा क्या है, एंट्री कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया क्या, ये 2 एंट्री क्या है, 1 एंट्री ये, 0 एंट्री ये, 2 एंट्री ये। तो ये क्या हो गया, ये बार ग्राफ हो गया यहाँ पर। ठीक है। और नेम क्या है, नेम के बारे में उन्होंने कहा कि नेम है, यहाँ पर 24 रेस्पॉन्सेस है। 24 रेस्पॉन्सेस में 2 रेस्पॉन्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने नाम की 2 टाइम एंट्री, जैसे कि मोहिनी रंगनाथन, संध्या देवी और सुपरनाग 2, इन लोगों ने इस डाटा सेट में 2 बार अपनी एंट्री की है। ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्या हो गया, यू कैन फाइंड आउट हियर वेरी इजीली इन किसमें, गूगल फॉर्म में। तो जब आप सर्वे करते हैं, सर्वे के लिए यूज करते हैं गूगल फॉर्म में, तो बहुत सारी चीज को एनालिसिस तो आपका वहीं पर ही हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो वो 2 लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों ने, यहाँ पर ये नंबर ये है, जिन लोगों ने इसमें 2 बार एंट्री की है। ठीक है ना। अब ये हो गया जेंडर। जेंडर क्या है, यहाँ पर 24 रेस्पॉन्सेज में मेल ने 25% और फीमेल है 75%, यानी फीडबैक देने में सबसे ज्यादा 75% द फीमेल एंड 25% द मेल। तो ये उसने आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप करते हैं कि यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस क्या,
तो 24 इंस्टीट्यूशन है इसमें, उन्होंने क्या कहा तो किस इंस्टीट्यूशन से कितने लोग आए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक तो ये तो एकदम सिमिलर डाटा है, तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा एक एक की एंट्री है। लेकिन यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2 लोगों का एंट्री हुई है, ठीक है, और अंसार वुमेन्स कॉलेज की से भी 2 लोगों की एंट्री हुई है। बट इन मिजोरम यूनिवर्सिटी कुल लोगों ने 3 लोगों ने 3 पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है, यहाँ पर एंट्री की है। तो यू कैन एनालिसिस वेरी इजीली कि भाई आपके पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कौन है, किसने क्या कितनी एंट्री की। इसके अलावा डेजिग्नेशन किसका क्या है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो लोगों ने जिन लोगों ने, हमारे पास एक कॉलम था डेजिग्नेशंस का, ठीक है, डेजिग्नेशंस क्या है, तो 24 एंट्री में 10 जो लोग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिन लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, और रेस्ट ऑफ क्या है, रेस्ट ऑफ क्या है भी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो लोग, जिन लोगों ने 50% पीपुल्स ने, जो लोगों ने लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनकी एंट्री, ठीक है। बाकी इन लोगों ने जैसे कैपिटल में लिखा, इन्होंने इन्होंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, इन्होंने इस तरह से लिखा, तो उनकी एंट्री क्या है, उनकी एंट्री को इसने क्या कर दिया है, इसने अलग कर दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो अलग कर दिया है, जूनियर रिसर्च फेलो, है ना, प्रोफेसर, है ना, टीजीटी मैथ, पीएचडी, तो इनकी क्या किया, ये सब क्या किस क्या 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 एक एक एंट्री है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करता है, ये क्लासिफाई कर देता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने पूछा प्लीज द रेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द 1 वीक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। अब इसका क्या है, 1 to 5 स्केल है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब क्या क्या मिला है, यानी 4 काउंट 12 यानी काउंट 12 काउंट 50% लोगों ने क्या किया है, 4 4 इसमें इन्होंने क्या दिया, स्केल कितना दिया, तो 5 था, लेकिन 50% ने 4, 50% ने 4, है ना, 50% ने 5, 50% ने 4, है ना। 4 स्केल क्या है, 4 है, स्केल 5 है ना, 50% ने 4 दिया है, 50% ने 5 दिया है ना। वर्कशॉप टॉपिक, ठीक है ना, वर्कशॉप टॉपिक क्या है, वर्कशॉप टॉपिक में जो स्केल दिया है, यानी काउंट 13 एंड 4 जो दिया है 13 ने दिया है, यानी 58.54.2 ने, और 5 यानी जो स्केल 5 जो दिया है, रेटिंग दी है, वो 11 लोगों ने दी है, 4.5 यानी 45.80 ने, ठीक है। टॉपिक वर्कशॉप टॉपिक यानी वर्कशॉप का टॉपिक कैसा, इसके बारे में रेटिंग देना दी। रिसोर्स पर्सन के बारे में रेटिंग देनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के बारे में क्या है, यानी 11 लोगों ने 4 रेटिंग दी है, और यहाँ पर 13 लोगों ने क्या की है, 5 रेटिंग दी है। यहाँ पर 54.2 रेटिंग, 45.8 रेटिंग, ठीक है ना। तो इसी तरह से वेयर द रिसोर्स पर्सन हेल्पफुल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लर्निंग रिसर्च, तो यहाँ पर 100% लोगों ने कहा है यस, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने कहा ओवरऑल हाउ टू यू रेट द 1 वीक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी टीचिंग लर्निंग टर्म ऑफ द यूजफुल स्किल देना है। तो यहाँ पर भी 50% फूल ने कितना दिया, 4 रेटिंग दी, और 50% लोगों ने क्या दिया, 5 को रेटिंग दी, ठीक है, 5 रेटिंग दी। तो ये क्या हो गया, एक ये एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। जब आप कोई मतलब जो आप कोई भी जब एक सर्वे को एनालिसिस करते हैं गूगल फॉर्म में, तो गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली आपको वहीं पर ही एनालिसिस करके देगा। और इसके अलावा अगर आप फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप इसका डेटा डेटा है वहां से व्यू, शीट से डेटा लीजिए, और शीट से डेटा लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर चैट जीपीटी से, इस वाले डेटे को चैट जीपीटी से यू कैन एनालाइसिस व्हाट इज इन दिस डेटा सेट, है ना। वो सारी चीजें कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंटरव्यू डाटा एनालिसिस के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर जरा सा मैं 5 मिनट का एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना, 5 मिनट्स ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। ओके, वेलकम बैक। तो अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Okay, so we have completed the theoretical part. Now we will discuss about जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये इंटरव्यू के प्रैक्टिकल पार्ट है, उसके बारे में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास एक सैंपल इंटरव्यू है। ठीक है ना, हम उस सैंपल इंटरव्यू को लेते हैं और सैंपल इंटरव्यू से क्या कर सकते हैं, हम लोग उस सैंपल इंटरव्यू का एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी मेथड हमने टेक्निक जो यूज की है उस चीज। ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ये बताइए, विजिबल हो रहा है ना, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? yes, sir. अच्छा, तो देखिए मैम, ये जो हमने कॉपी नहीं होगा, हमारे पास एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या है, हम लोगों ने एक सैंपल इंटरव्यू लिया है। ठीक है ना, उस सैंपल इंटरव्यू का क्या किया, हमने यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आप सैंपल इंटरव्यू किया है, हमारा सैंपल इंटरव्यू है इम्पैक्ट ऑफ द एआई ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ क्वेश्चन इज हियर, है ना। मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन आर हियर, इंटरव्यूअर। ठीक है, इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोगों के पास यहाँ पर। ठीक है ना, तो और क्वेश्चंस का वो सारे आंसर्स भी है, यानी इंटरव्यूअर इंटरव्यू, इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू भी। ठीक है ना, वो सारी चीजें हमारे पास है। तो हम इस इंटरव्यू को लेते हैं और एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, तो ये इंटरव्यू है पूरा हमारे पास। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अब इस इंटरव्यू का हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो इंटरव्यू एनालिसिस के बारे में जो बात की है अभी, वो मेथड तो हम यूज करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, इससे ये पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से, कैन यू एनालिसिस दिस इंटरव्यू। तो या कैन यू समराइज दिस इंटरव्यू। तो अब वो क्या कर देगा कि दिस इंटरव्यू के बारे में समराइज कर देगा और आपको ये बता देगा कि एग्जैक्टली कि इस इंटरव्यू में क्या है। ठीक है ना, तो क्या बता देगा, आपको बता देगा इस इंटरव्यू में एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि हमने ये पूछा उससे कि कैन यू समराइज दिस इंटरव्यू। तो उसने क्या कर दिया, इस इंटरव्यू को समराइज कर दिया, बहुत मतलब क्या कर दिया, समराइज कर दिया। लेकिन हमें इतना समराइज नहीं करना है इसको, हमसे पूछना है कि व्हाट इज इन दिस इंटरव्यू। तो हमें क्या करना, पूछना है कि एग्जैक्टली कि इस इंटरव्यू में है क्या, हम किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसने बता दिया, इन दिस इंटरव्यू तो माजिद एन एक्सपर्ट इन डाटा एनालिसिस with a focus on the AI education, discuss the current states of the AI integrations of the teaching and learning in India. They highlight the example of AI impact on education, such as personalized learning platform, content recommendation system. Majid also addresses the challenges hindering the widespread AI adoption in education, including the digital divided teacher and training, data privacy and cost. They outline an approach for the analysis the impact of AI on education using available data set and discuss how to present the finding
to education policy maker, emphasizing the importance of the addressing and challenge, है ना, तो पूरा डिस्कस कर दिया। अब हमने कहा कि ये तो हमारे पास एक इंटरव्यू है, अब हमारे सामने एक जो दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि हम इस इंटरव्यू को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हम चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि how can analysis this interview suggest me some, ठीक है। तो अब हमने कहा कि किस तरह से पूछा और कहा कि हमें कुछ टेक्निक सजेस्ट कर दी है। तो अभी चैट जीपीटी क्या करेगा, एक्चुअली आपके पास एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू में कौन सी टेक्निक यूज करनी होती है उसके लिए आपको अपने दिमाग बहुत दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि आप मुझे कुछ टेक्निक सजेस्ट कीजिए, तो वो क्या कर देगा, आपको एक टेक्निक सजेस्ट कर देगा कि आप इन टेक्निक के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो इंटरव्यू है वो इन टेक्निक से क्या हो सकता है, एनालाइज हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल यू कैन एनालाइज दिस टॉपिक इन थेमेटिकल एनालिसिस। अब थेमेटिकल एनालिसिस के बारे में हम लोग ने पढ़ चुके, बता चुके। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई द रिक्वायरिंग थीम और टॉपिक डिस्कस थ्रू द इंटरव्यू सच एज द करंट स्टेट ऑफ एआई इंटीग्रेशंस, एग्जांपल ऑफ एआई इम्पैक्ट, challenges and adoptions, approach of the analysis, presenting finding, and this will be have the understand the key point of the discuss, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि ठीक है, अब हमारे पास थेमेटिकल एनालिसिस है, तो हमने कहा कि काइंडली एनालिसिस with analysis this with thematic analysis, ठीक है ना। तो अब हमने कहा जो इंटरव्यू हमारे पास है इसको थेमेटिक एनालिसिस के से मतलब क्या है, थेमेटिक एनालिसिस में वो हमें कीजिए, ठीक है ना। क्या इम्पैक्ट होगा, क्या है, वो सारी चीजें हमें वो पकड़ देगा। तो देखिए ये हमें क्या कर देगा, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उसने हमें एक एनालिसिस का, इस इंटरव्यू को एनालिसिस कर दिया। और एनालिसिस कितने वर्ड में करना है, कितना डेप्थ करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो करंट स्टेट ऑफ द इंट्रीगेशन इन एजुकेशन, अब ये क्या एनालिसिस क्या है थेमेटिकल में, इंटरव्यू एक्नॉलेज दैट द एआई इंट्रीगेशंस इन द टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडिया इज स्टिल इट इज अर्ली स्टेज, ठीक है। Mention of the initiatives such as the personalized learning platform and AI power assessment tools and indicating the gradual of the study. Example of AI impact, ठीक है ना, उसने AI का impact, Byju's and Topper cited the example of the AI-based adaptive learning platform and personalized learning experience. Khan Academy mentions for the use of the AI driving content recommendation system for the provide tailored education content. Development of AI power chatbot by the education institutions to provide the instant support and streamline the administration. Challenging and adoptions, है ना। तो अब चैलेंजिंग एंड अडॉप्शंस क्या है, वो सारी चीजें भी उन्होंने क्या कर दिया, वो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, इसको भी बता दिया कि एक्चुअली चैलेंजेस ऑफ द एडॉप्शंस क्या है। डिजिटल डिवाइड हाईलाइट द प्राइमरी चैलेंज द पार्टिकुलर इन द रूरल एरियाज अफेक्टिंग एक्सेस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रेट कनेक्टिविटी, need for the upskilled teachers and teacher and effectively leverage of the AI tool in the classroom. Concern regarding the data privacy and security indicate the importance of the building trust, and high cost associated with the AI implementation identify as a barrier, especially for the resources. क्या हो गया,
कांस्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को उन्होंने किया। और दूसरा अप्रोच एनालाइज इम्पैक्ट, अप्रोच टू एनालाइज इम्पैक्ट का भी उसने बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं हेडिंग हेडिंग में, तो अप्रोच टू द एनालाइज द इम्पैक्ट के बारे में भी बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद द प्रेजेंटिंग फाइंडिंग ऑफ द पॉलिसी मेकर, और उसने बता दिया कि पॉलिसी मेकर के क्या क्या काम कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द करंट लैंडस्केप प्रोवाइड द एम्फसाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, keep finding present the focus on the positive outcome such as the improved learning outcome and enhanced teachers efficiency, ठीक है। challenges identify and recommendations process of the facilitate response and adequate adoption AI tool, ठीक है। और उन्होंने पूरा कंक्लूजन दे दिया है ना द इंटरव्यूअर हाईलाइट द इवॉल्विंग द नेचर ऑफ द एआई, पूरा कंक्लूजन करके दे दिया, ठीक है। तो ये थेमेटिक से हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद उसने कहा कि थेमेटिक के साथ साथ यू कैन यूज कंटेंट एनालिसिस। जो कंटेंट एनालिसिस के बारे में हमने जो पढ़ा था अभी, तो कंटेंट एनालिसिस क्या है? क्वांटिफाइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्टेन कीवर्ड or phrase use the both interview that could include the term later the AI education, challenges, opportunities and recommendations. This will be provide the insight into the focus of area interview, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस के बारे में हम बात, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इंटरव्यू को कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो काइंडली कैन यू analyze analysis this ठीक है। कंटेंट एनालिसिस के बारे में, अब तो कंटेंट एनालिसिस में ये क्या कहता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देगा, है ना। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड के बारे में बता दिया उसने, ठीक है। तो अब उनने क्या कर दिया, अब हमको उसने एक एनालिसिस करके बता दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड है, कीवर्ड सच एज एआई, एजुकेशन, इंडिया, इंटीग्रेशन, challenges, example, analysis, and policy maker appear the frequently through the interview, ठीक है। The frequency of these keyword reflect the central focus of the discussion of AI integration। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको इसको ऑल एलिब्रेट करना है, क्यों, तो हम पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी हाउ many time these interview give me answer in नंबर। तो अब हमने क्या, हमने और चीजें और क्लैरिफाई कर लिया है। अब उसने कहा कि फ्रिक्वेंटली यूज हुए, लेकिन अब हम देखते हैं कितनी बार यूज हुए, कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपने सडनली, अब देखिए, अब उसने पूरा एक हम लोग को चार्ट बना के दे दिया कि एआई 14 टाइम्स यूज हुआ है, एजुकेशन 11 टाइम यूज हुआ है, इंडिया 5 टाइम यूज हुआ है, इंटीग्रेशन 7 टाइम्स यूज हुआ है, चैलेंजेस 5 टाइम यूज हुआ है, एग्जाम्पल 5 टाइम यूज हुआ है, और एनालिसिस 4 टाइम यूज हुआ है, और पॉलिसी मेकर 2 टाइम यूज हुआ है। तो दीज काउंट इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच वर्ड यूज इन इंटरव्यू, ठीक है ना। इतने टाइम यूज हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा डिस्कशन ऑफ द एआई इम्पैक्ट। तो अब क्या हुआ, एक इम्पैक्ट इंटरव्यू विद मेंशन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एआई इम्पैक्ट इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म बाई लाइक द बाई जूस, इन सारे को उन्होंने एग्जांपल इसमें दिया। उसने कहा कि इसका इम्पैक्ट है, तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। चैलेंजेस टू द अडॉप्शंस,
है ना, इंटरव्यू डिस्कस बैरियर्स द चैलेंजेस हाइडिंग बाय डिस्पेयर अडॉप्शन इन एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचिंग डिवाइडेड, ये चैलेंजेस दैट इज वो किया। अप्रोच टू एनालिसिस, ठीक है ना, दिस इंटरव्यू आउटलाइंस ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ एआई एजुकेशन, emphasize the gather the data from multiple sources, use of the statistical analysis technique, data visualization tools और तो mention the method, ठीक है ना। प्रेजेंटेशंस ऑफ द पॉलिसी मेकर, और पॉलिसी मेकर का प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है, उसके बारे में भी उसने के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा जो मेथड्स है, ठीक है ना, अब हमने कंपैरेटिव मेथड्स के बारे में क्या डिस्कस मैथ एनालिसिस के बारे में भी बात कर दिया। तो डिस्कस एनालिसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, डिस्कस एनालाइज द लैंग्वेज टोन एंड फ्रेमिंग यूज ऑफ द इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडिया और द कंस्ट्रक्ट कन्वे द पोजीशन, दे कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पावर डायनेमिक अंडरलाइंग अजम्पशन। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो हमने ऊपर किया था उसी तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं, एनालिसिस विद डाटा विद, ठीक है। तो अब वो क्या कर देगा, अब हमको इसके अकॉर्डिंग करके दे देगा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या करके देगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरव्यू को एनालिसिस करके दे देगा, ठीक है ना। तो अब उसने क्या एनालिसिस करके दे दिया, अब उसने क्या बताया है, हमें बताया कि सर्टेनली द क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इन्वॉल्व द एग्जामिनिंग द लैंग्वेज tone and framing used in the discourse to the uncover underlying power dynamic assumption and ideology. Let's analyze the data using CDA principle, ठीक है। तो frequency of the keywords, keyword की frequency, the frequent use the term like the AI and education suggest to these topic are central to the discourse, reflecting importance of the content of the interview. Terms such as the interrogation challenges and example indicate the focus of the exploring the potential of the benefit. The lower frequency of the term media and policymakers suggest that while these topics are mentioned, they may not be the central to the discourse as AI education. Power of dynamic, ठीक है ना, language and framing, ठीक है, पावर ऑफ डायनेमिक बता दिया उन्होंने एंड लैंग्वेज ऑफ फ्रेमिंग बता दिया। So this language used to discussing AI and education is generally neutral and technical, reflecting and professional context of the interview, ठीक है। तो ये बता दिया उसने कि ये जो लैंग्वेज जो यूज हुई है वो क्या हो, टेक्निकल लैंग्वेज यूज या न्यूट्रल और टेक्निकल लैंग्वेज को यूज किया गया है इसमें। द टर्म लाइक अपॉर्चुनिटीज एंड रिकमेंडेशंस frame the discourse positively, indicating a focus on constructive solution rather than the solely dealing of the challenges. तो उन्होंने लैंग्वेज का फ्रेमवर्क भी बता दिया कि लैंग्वेज का फ्रेमवर्क क्या है इसमें। आइडियोलॉजिकल अजम्पशंस क्या है वो बता दिया, आइडियोलॉजिकल अजम्पशन बता, इम्प्लिसिट बायस्ड बता दिया, कंक्लूजन दे दिया, ठीक है ना। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम दूसरे किसी एक और हमने किसको लिया, कंपैरेटिव एनालिसिस को ले लिया। और कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, compare the perspective presented by the interviewer on various topics such as the current state of the AI integrations, example of AI impact and challenge to the adoptions. It can reveal the area of the agreement as disagreement, different interpretation, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया कंपैरेटिव एनालिसिस विद कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। और जो भी आपको जो चाहना है, जैसे जो आपको प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो आप चाहते हैं वो सारी चीज आपको ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, ये सारी चीजों को भी जो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस, आप ये देखिए कितने कम टाइम है, जस्ट द 5 सेकेंड यू गेट द रिजल्ट कि व्हाट इज द व्हाट, जो आपको एनालिसिस करना है 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात है ना। वरना ऐसा होता है क्या, है ना, ऐसा होता ही नहीं है कि लोग है आपको आप इतना स्टडी करते हैं, ये स्टडी किया, वो जर्नल पढ़ा, वो सारी चीज पढ़ी, उसके बाद आप क्या करते हैं,
किसी भी डेटा को एनालाइज कर पाते हैं, है ना। उसके लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। तो अब जो हमने जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में उन्होंने करंट स्टेट ऑफ द एआई इंटीग्रेशन इन एजुकेशन इंटरव्यू इंटरव्यू क्या करा, एक्नॉलेज, उसने एक्नॉलेज किया है दैट ऑल इंटीग्रेशन इन द एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल द अर्ली स्टेट बट द गेनिंग इन ट्रांजैक्शन स्टिल। इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, नो स्पेसिफाइड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड serving primary as the facilitator to the discussion example of the AI impact। इंटरव्यू कह रहा है तो प्रोवाइड द एग्जाम्पल, इंटरव्यू ने क्या किया, कुछ कुछ क्या किया, कुछ एग्जाम्पल उसने प्रोवाइड किया। इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, आस्क फॉर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग एंड इंटरव्यू द ऑफ टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ द अडॉप्शन बता दिया, अप्रोचेस ऑफ द एनालिसिस बता दिया, वो सारी चीजें आपको उसने क्लैरिफाई करके दे दी। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो पॉलिसी मेकर बता दिया, उसमें वो भी चीज आपको एनालिसिस करके। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई एक एकेडमिक इंटरव्यू को एनालिसिस करते हैं तो यू कैन एनालिसिस वेरी इजीली बाय द चैट जीपीटी और जेमिनी एआई और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है ना। तो इसी को क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एक जो हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक बिंग जो हमने डिस्कस किया है, हमने बिग एआई के बारे में जो हमने पढ़ा है, और बिंग एआई से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिंग एआई से, बिंग एआई क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई टूल से जो भी चैट जीपीटी की तरह काम करता है, लेकिन इसने बहुत सारे चीजों को ऐड कर रखा है ना। तो ऐड क्या कर रखा है कि फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पूछा, ठीक है, हमने देखा एक ये इंटरफेस खुलकर आता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसमें इसमें आपने पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद ये कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम करेक्टर्स ऑफ द लिमिट है, यानी कुछ कम करेक्टर्स लेता। तो हम कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने नोटबुक पर क्लिक किया, एक नोटबुक है, और नोटबुक को हमने क्या किया, नोटबुक को हमने व्हाट इज द योर माइंड हमने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब हमने पूछा इससे कि एग्जैक्टली अब वो लिख रहा है ना, एक्चुअली हम लोग, कैन यू एनालाइज दिस डेटा विथ थेमेटिक। ठीक है ना, हमने क्या लिख दिया, हमने कहा कि भाई ठीक है, आप इसको थेमेटिक एनालिसिस के थ्रू इसको आप एनालिसिस कीजिए। तो अब इसमें क्या कर देगा, अब इसमें देखिए ये आपको, ये आपको क्या कर देगा, इम्पैक्ट है, चैलेंजेस है, उसने भी बता दिया इसमें क्या है कैसे है। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या है, इसने बता दिया हियर आर द थेमेटिक एनालिसिस ऑफ द इंटरव्यू, एआई इंटीग्रेशन एजुकेशन, है ना। तो उसने क्या बता दिया, थेमेटिक एनालिसिस इंटरव्यू को इन्होंने इसको एनालिसिस कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग के जरिए भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में अगर हमने पूछा कि कैन यू एनालिसिस दिस डेटा विथ तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस का भी डाटा कर सकता है। ठीक है ना, उसको भी कर सकता है, यानी कि ये भी जो काम कर रहा है वो जस्ट लाइक ए कैसे काम कर रहा है, जस्ट लाइक ए चैट जीपीटी के की तरह ही काम कर रहा है ये। ठीक है ना, चैट जीपीटी की तरह ही काम कर रहा है।
ठीक है ना, वो सारी। और दूसरी चीज ये है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, टेक्स्ट में और वर्ड में। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बिंग से फैसिलिटी है, यू कैन क्या कर सकते हैं, अब जैसे एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हमने वर्ड में एक्सपोर्टिंग किया है, तो यू कैन एक्सपोर्ट दिस डाटा इन वर्ड ना, वर्ड फाइल जो है ना, तो हम इसको वर्ड में कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं और टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो ये उन्होंने इसमें इसलिए इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने यहाँ पर इसमें जो वर्ड में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर वर्ड में इसको एक्सपोर्ट करें, यानी आप वर्ड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी वट एवर यू वांट। ठीक है ना। इसके अलावा ये कर सकते हैं आप यहाँ से किस में और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं और टेक्स्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी इट। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू डू, यू शेयर इट, शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कॉपी किया, इसका लिंक कॉपी किया, और जहाँ भी आप खोल सकते हैं वहां पे आप जिसको जिसको भी आप कॉपी लिंक किया, कॉपी लिंक करने के बाद आप इसको खोल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं बाय मेल वगैरह, शेयर कर सकते हैं। तो सारी चीज फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई इसमें बिंग में, और दूसरी चीज ये है कि बिंग जो है ना, तो बिंग कैन क्रिएट योर इमेज, इमेज को भी क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल आई एम री रिसर्च स्कॉलर एंड वांट, बार ग्राफ तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बार ग्राफ के बारे में आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको बार ग्राफ में आपको कुछ वो देना पड़ेगा, क्या क्या करना, डेटा देना पड़ेगा, डेटा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक कोई डेटा ले लेते हैं, हम कोई डेटा यहाँ से लेते हैं, कौन सा डेटा ले लें, हम लेते हैं इनकम ग्रुप का डाटा। हम कोई डेटा ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, सिंपल सा डेटा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम ना लगे, हमारे पास ये डाटा है। और डाटा से हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर किया, अब क्या डाटा क्या है हमारे पास, ये डेटा है, हमारे पास डेटा है, और हमने क्या किया, इसमें आप बढ़ा दो। ठीक है, तो अब ये देखो ये कैसे जनरेट करता है या नहीं करता है, बार ग्राफ करता है नहीं करता है। ठीक है ना, ये इट विल टेक, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है ना, थोड़ा टाइम ले रहा है ना, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है ग्राफ को बनाने में, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम इससे माइक्रोसॉफ्ट बिंग से भी ना बहुत सारी चीजों को हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत सारी चीज हम इससे ले सकते हैं ना, इसको डिजाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, को पायलट है, को पायलट उसने दे दिया, इट विल, आई विल ट्राई क्रिएट दैट। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि मैं इसे ये क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। अब वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है, अब हमें उसने क्या कर दिया, हमें उसने उसकी कुछ इमेज बना के दे दी है ना, इमेज बना के दे रहा है ना। अब इमेज वो एक्यूरेट बना के दे रहा है नहीं दे रहा है, ये डिपेंड करता है। देखिए वो डेटा हमने प्रोवाइड किया, और वो डेटा प्रोवाइड करने के बाद हमको क्या कर दिया उसने उसने आ, एक मतलब ग्राफिक बना के दे दिया, ये यू कैन सी इट, दिस इज द ग्राफिक, है ना। उसने डेटा जो हमने प्रोवाइड किया, उस डेटे का उसने क्या कर दिया, हम लोगों को एक ग्राफिक बना के दे दिया। खुलने दीजिए जरा। तो उसने क्या किया, हम लोगों को क्या कर दिया, मैं आपको दिखाना, एक ग्राफिक बना के दे दिया। देखिए ये कितना अच्छा ग्राफिक है, जो हमने यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया था उसको, उस डेटे का उसने क्या किया, एक ग्राफिक बना के दे दिया। और इस ग्राफिक को यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन इसको लार्ज देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है ना। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप इसको, इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये जो है ना एक्सपोर्ट का, तो ये क्या कर सकते हैं यहाँ से, यू कैन पीडीएफ वर्ड, जहाँ भी जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें इसे वर्ड में डाउनलोड करना पड़ेगा।
देखते हैं वर्ड में डाउनलोड करता है नहीं करता है ये। उसने वो तो करके दे दिया। स्क्वायर में करना चाहो तो स्क्वायर में, लैंडस्केप में करना चाहो तो लैंडस्केप में भी आपको ये रिक्रिएटिंग दिस इमेज। तो ये अब लैंडस्केप में हमें लैंडस्केप में एक क्रिएट कर दिया और क्रिएट कर दिया। ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, लुक गुड। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये डेली ई दीदी का हम लोगों को ये सब्सक्रिप्शन दे रहा है ना। तो अब इसमें क्या है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों का यहाँ से इसको डाउनलोड डाउनलोड होता है यहाँ से, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन का क्रॉस कर दूंगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर ना ये यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है और ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एक डाटा क्रिएट कर सकते हैं, बहुत विजिबल, बहुत अच्छी तरीके से डाटा क्रिएट। इसके अलावा और दूसरी कोई चीज अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू क्रिएट ए इमेज। क्रिएट ए इमेज। कौन सी इमेज, इमेज ए लेडी, ए लेडी बाइंग, ए लेडी मार्केट एंड बाइंग ए पॉट। ठीक है ना। अब हमने, अब जैसे हम तो देखो इमेजिनेशन, आप देखो इमेजिन, क्रिएट ए इमेज ए लेडी इन इन द मार्केट, इन द मार्केट एंड इन द, इन द कहा, इन द अरब मार्केट एंड बाइंग ए पोर्ट है, देयर इज female एंड। ठीक है ना। आपने देखिए अब ये क्या कर देगा, ये क्या क्रिएट करता है आपको। तो कहने का मतलब ये बिंग एआई आपको करता है, आपको ना आपके डेटा को विजुलाइज करके दे रहा है ना, आपके डेटा को विजुलाइज कर रहा है, जो आप चाह रहे हैं उससे ज्यादा विजुलाइज करके दे रहा है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, बेनिफिशियल है फॉर आपके लिए, आपके लिए। ठीक है। देखिए हमने जो डाला था, हमने जो प्रॉम्प्ट, ए लेडी इन द अरब मार्केट एंड बाइंग ए पॉट, देयर इज ए केमल एंड हॉर्स इज आल्सो विजिबल। देखिए तो उसने क्या कर दिया, देखिए वो सारी चीजें उसने चार, हमें क्या कर दिया, चार उसने बना के दे दिया। ठीक है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इमेज को भी सेव कर सकते हैं, कहीं भी सेव इमेज कर दे, वो सेव इमेज नहीं होती क्योंकि हमने कर दिया था। इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको डाउनलोड किया, इसमें कोई भी इमेज को आप सेव कर सकते हैं। हमने डाउनलोड में इमेज जब की, इसको किया, तो ये डाउनलोड में हमारे पास सेव हो जाएगी, है सेव एज इमेज। जब आप लार्ज कर देंगे तो वो फिर क्या का पैसे दो, पैसे दीजिए आप। ठीक है ना। तो अब पहले क्या करना है आपको, देखो होता है ना, देखिए हमने जो हाई क्वालिटी में एक इतनी अच्छी इमेज आपके सामने क्रिएट कर दी उसने, जो आपने चाहा, है ना। कभी कभी होता है ना कि हम जो चाहते हैं इमेज वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती मार्केटिंग में। ठीक है ना। तो ये
ठीक है ना। तो ये इमेज क्या है, यहाँ पर उसने कैमल भी है, या लेडी भी है, पॉट का ये पॉट खरीद रही है, पॉट का भी दे रखा है, कहाँ करा है, इन अरब कंट्रीज में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से आप बिंग एआई का भी यूज कर सकते हैं अपने किस लिए ना। उन्होंने 4 तरह का, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, यानी 4 तरह के आपने क्या कर दिया, वो आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप इसको मॉडिफाई का इंक्लूड इन द कलर स्पेसिफिक इन द मार्केट सीन, एट द मार्चेंट हैंगिंग विद द लेडी ओवर द प्राइस, मेक द श्योर कैप्चर बस्टिंग एटमोस्फियर ऑफ द अरब मार्केट। तो ये सारी चीजें आपको ये रेडीमेड प्रॉम्प्ट तैयार करके देता है, इसके अकॉर्डिंग आप और ज्यादा इसको क्रिएट करके देते, ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिया आपको, को पायलट, ठीक है ना, और नोटबुक और डिजाइनर। और इसके अलावा एक ये सर्च है। तो सर्च में क्या करता है, जिस तरह से गूगल सर्च है वैसे ही इसका अपने एक सर्च है, यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग, है यहाँ से कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी सर्च कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी टूल आपको एक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग किस चीज की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं सर्वे डेटा एनालिसिस की तरफ, ठीक है ना। तो अब गूगल फॉर्म हो गया, गूगल फॉर्म के अलावा हमने क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का सर्वे का, एक डेटे का सर्वे करना है। कि फॉर एग्जांपल हम लोग चैट जीपीटी पे गए, वहां पर हमने कहा, और हमने एक सर्वे ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्वे ले लेते हैं हम लोग, कहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास है, हमारे पास एक ये सर्वे है, ठीक है ना। सर्वे क्या है, एक तरह से एक फीडबैक फॉर्म है, लेकिन उसको हम सर्वे की शक्ल में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जैसे कि हम लोग कर दें, यहाँ पर डाला, ठीक है। और हमारे पास सर्वे क्या है, हमारे पास देखिए ये क्या सर्वे है। चाहे तो हम इसको पहले टेबल बनवा लें, और चाहे तो विदाउट टेबल हम लोग कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले पूछ लेते, टेबल बना देते हैं, ठीक है ना। टेबल फॉर्म में क्या लग सकते हैं, हम टेबल फॉर्म बना लेते हैं इसको पहले, क्योंकि वो जब टेबल फॉर्म बना लेंगे तो हमारे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चैट जीपीटी समझ सकता है। जैसे भी आप चाहें वैसे भी चैट जीपीटी क्या कर सकता है, चैट जीपीटी समझ सकता है, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, ठीक है। तो एक ये क्या कर दिया, एक ये ने डाटा का जो टेबल क्रिएट करके दे दिया, और डाटे के टेबल में क्या गया है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो डाटे के टेबल में क्या है, डाटे के टेबल में हमारे पास हमारे पास इसमें जेंडर का है, जेंडर है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस है, डेजिग्नेशंस है, इंस्ट्रक्शंस मोड है, वर्कशॉप टॉपिक है, रिसोर्स पर्सन है, इनिशिएटिव फ्यूचर्स है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे पास और क्या है, हमारे पास रेटिंग है यहाँ पर, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, रेटिंग है, ये हमारे इंस्ट्रूमेशन पे ये 4 रेटिंग है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, और एक्सपीरियंस गेन्ड है, कि हमने इससे क्या एक्सपीरियंस गेन किया, ठीक है ना। एक है वो, एक इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली कि इसमें है क्या, बहुत शॉर्ट में हम लोग कर लेंगे। व्हाट इज इन दिस
टेबल, ठीक है, तो उन्होंने बता दिया द टेबल कंटेंट पार्टिसिपेंट अटेंड, ये सारी चीजों को उन्होंने बता दिया कि ये सारी टेबल में है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इस टेबल का कोई एक कॉलम, तो ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। इसको थोड़ा सा वो हमें दिख नहीं रहा, हम यहीं से कर लेते हैं। तो अब हम इससे कहते हैं कि आप ये कैन यू एनालाइज, ठीक है। तो अब हमने कहा कि भाई इसको जो सर्वे जो डेटा है, इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मोड दे दिया, वर्कशॉप टॉपिक दे दिया, रिसर्च पर्सन है, इन्वेस्टिगेट द फ्यूचर है। तो आप किस वाले, किसको आप इसको, है ना, क्या करना चाहते हैं इस सर्वे में, आप किस चीज को आइडेंटिफाई करके इसको एनालिसिस करना चाहते थे, वर्कशॉप टॉपिक, ठीक है ना। तो अब हमने कहा वर्कशॉप, हमने ये कहा कि कैन कैन यू, है ना, ठीक है। तो अब क्या है, वर्कशॉप जो हमारा वो है टॉपिक है, हम उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरा एनालिसिस करके दे दिया कि भाई आपका ये है, इसमें ये है, ठीक है ना। The high average rating. This average rating of the workshop topic is approximately 4.2 and out of 5, है ना। इन इंडिकेटिंग द पार्टिसिपेंट, ये सारी चीजें बताते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, मैनी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड द पॉजिटिव फीडबैक स्टेटिंग दैट द वर्कशॉप टॉपिक वाज इंफॉर्मेटिव, ठीक है, ये सारी चीजें। प्रैक्टिकल रिलेवेंस, ये सारी चीजें बताता। डिमांड ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना, दिस पॉजिटिव रेस्पॉन्स उन्होंने बताया कि डिमांड इसमें है, वो सारी चीजें उसने क्लेरिफाई करके दे दी, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इस जो डेटा को, अगर आप चाहते हैं इस डेटा को और ज्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट, ठीक है। अब स्टेटिक्स एनालाइज के बारे में, डिस्क्रिप्टिव है, स्टेटिक्स है, वो सारी चीजें आपको बता देगा कि आपको कैसे करना है, ये पूरा बता दे रहा है वो बना के पूरा, आपको बता देगा। स्टेटिक्स है, एनालाइसिस, मतलब जैसे हमने पहले बताया ना, वैसे ही आपको सर्वे को भी, आपको उसी तरह से सर्वे को क्या करना है, आपको सर्वे को भी एनालिसिस करना है, ठीक है ना। स्टेटिक्स एनालिसिस, जो भी एनालिसिस, जो भी इसमें मेथड यूज होंगे, वो सारी मेथड को आपको एनालिसिस कर लेना, ये सब हो जाएगा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कोई भी डेटा है, आप कोई भी पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटिव एनालिसिस है, ठीक है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो सारी चीजें आइडेंटिफाई की है, रिकमेंडेशंस है, पॉजिटिव फीडबैक है, रिक्वेस्ट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज है। तो वो सारी चीज आपको बता देगा, ठीक है ना। पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल और डिफेंस कन्वे द ग्रेजुएट है। अब हमने पूछा हाउ मेनी पार्टिसिपेंट एप्रिसिएशन और ऑर्गेनाइजर, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि हाउ मेनी पीपुल्स क्या है, हाउ मेनी पीपुल्स आर ऑर्गेनाइजर। तो उसने बता दिया कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस, ठीक है, पार्टिसिपेंट डिफेंस कन्वे द ग्रेजुएट, है ना। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट,
तो उसने बता दिया पार्टिसिपेंट फॉर द इतना यहाँ यहाँ इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हम लोगों को क्या किया, इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन किया, ठीक है ना। और इसके अलावा हाउ मेनी पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट वीडियो, वीडियो का कितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो इतने लोगों ने बता दिया, इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो ये जो भी चीज आप चाह रहे हैं, इससे जो भी चीज पूछना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको है इंक्लूड कर देगा, आपको बता देगा, है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग वो उसको एनालिसिस कर देगा, है ना। तो वो एनालिसिस कर देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम सर्वे की रिपोर्ट्स को भी एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरव्यू की रिपोर्ट को भी एनालिसिस कर सकते हैं, जनरल डेटा को भी एनालिसिस कर दें। हायर चैट जीपीटी के थ्रू हर किसी को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए शायद ये सफिशिएंट होगा। तो आज हम यहाँ पर इस क्लास का एंड करते हैं, और आज हम लोगों ने समझा कि बेसिकली के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी। उसके बाद हमने इंटरव्यू के बारे में जाना कि इंटरव्यू को डेटे को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। उसके बारे में हमने सर्वे डेटा एनालिसिस के बारे में भी जाना, और उसके बाद हमने विंग एआई पे जाना कि किस तरह से हम उस किसी भी डेटे को पिक्चराइज हम कैसे कर सकते हैं, हेल्प ऑफ किसकी मदद से, बिग एआई की मदद से, ठीक है। और जेमिनी एआई के बारे में हमने जाना कि जेमिनी एआई से कैसे हम लोग डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया, ठीक है ना। तो अब 2 दिन में हम ये जाला, अगला जो क्लासेस होगा वो पूरा टोटल है 2 क्लास जो होंगे डाटा विजुअलाइजेशन पे होंगे, और डाटा विजुअलाइजेशन पे हम लोग बहुत सारे जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, कि किस तरह से एआई टूल्स के थ्रू हम लोग डाटे के विजुअलाइजेशन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो आज का तो टॉपिक यही हम लोग समाप्त करते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इफ यू वांट टू आस्क समथिंग वो पूछ सकते हैं। और समीना मैम का एक क्वेश्चन था शुरू में, तो समीना मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चंस अगेन? Sir, I was talking about sentiment analysis, but you explained, I got the sense of it during your lecture. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो अबाउट द सेंटिमेंट एनालिसिस, तो हम चैट जीपीटी से एक्चुअली हम जो बता रहे हैं वो तो हमने बता दिया, है ना। लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी से पूछते हैं कि एक्चुअली उसकी नजर में सेंटिमेंटल एनालिसिस है क्या, है ना। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सेंटिमेंटल एनालिसिस? Provide me some example so that I can ठीक है। तो अब हम इससे पूछ लेते हैं क्या है। तो अब देखिए चैट जीपीटी आपको बता देगा कि सेंटिमेंटल एनालिसिस बेसिकली है क्या, है ना। तो ये सारी चीजें बता, एक तो सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में हुआ, उसमें इमोशंस होंगे, इस इमोशंस के बारे में, लेकिन उसने सेंटिमेंटल एनालिसिस को बहुत डिस्क्राइब कर दिया, है ना। डिस्क्राइब कैसे कर दिया? The sentimental analysis, also known the opinion mining, is the natural language processing technique used that determine sentiment expression the piece of the text. Sentiment can be positive, negative, or the neutral sentiment. ठीक है, neutral sentiment analyze aim to extract subjective information from the text data, which can be valuable for the various applications such as understanding customer opinion, social media monitoring, brand reputations, and management and market research. Here how sentiment analysis generalized work for the data analysis, text processing, फ्यूचर एक्सेक्शन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशंस, है ना, सारे है ना, एवल्यूशंस, ठीक है ना, एप्लीकेशंस। हियर द सिंपल एग्जांपल ऑफ द सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? लेट्स से
you have the data set containing customer reviews of the product. Each review consists of the text to the review and the corresponding sentiment label, positive, negative, neutral. You can perform sentiment analysis on the this data set using the following step. है ना, क्या कर सकते हैं? Cleaning the data, future extractions, sentiment and classifications, इस सारी चीजों, evaluations, application we use. By the analyzing the sentiment of the customer review, business can be gain insight into the customer opinion and feedback, which can inform the decision-making process such as product improvement, marketing strategy and customer service enhancement. तो ये होता है मैम, ठीक है, ये होता है और इसको हम इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, Thank you. एनालिसिस कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छा भी होता है ये, ठीक है ना। Thank you. तो ठीक है मैम, क्लियर मैम? Yes, yes, sir. Thank you. और anyone else, anything else? Otherwise we will end it. Okay, thank you very much for sharing your views and participate this workshop. So if you have any questions, any doubt regarding this workshop or this lecture, so you can ask me on my WhatsApp number. है ना, group is also available here. है ना, okay, okay. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Okay, Thank you, thank you. sir. Thank you, thank you. अजय जी, want to say, ask something? कुछ है, कुछ पूछ तो नहीं रहे आप? No, sir. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Thank you.